Assalamu alaikum. Welcome back to the course Pakistan Studies. Today is the second lecture of the lecture series of Pakistan Studies. And in the previous class, let us get a bit revision of the previous class. And what did we discuss in the previous class? Were basically main six concepts. The first one was analysis. The second one was um, concept of space and time, while the third one was historical reasoning, the fourth one was facts and interpretations, the fifth one was opinions and judgments, and the sixth one was causation. So, in our introductory lecture, we tried to understand these six basic concepts which help us in our daily lives and which help us in our in our academic life, in our study life, and it helps us in understanding different concepts and different narratives which we may face in our academic life and which we may face in our normal life. Today we will be moving towards the history of India, because the history of India is quite important before getting into the history of Pakistan or the Pakistan movement, because Pakistan seceded from India in 1947, and this whole area, which is now comprised of both Hindustan and Pakistan, it was called as Hindustan, or in English, it was called as in India, a united India. So we basically have our own history from the ancient India and from the medieval India. So we have to trace that history back and we have to study that history. So today we will be talking about India from ancient times to 1757 and overview. Uh, Before going into the ancient times, first I have to make you understand of the concept called as periodization in history. What is basically periodization history? Periodization is a word originated from the word called period. So the period which we talk about is a span of time, is a moment of time from point A to point B, or from point C to point D. When we divide time into different periods, that process is called as periodization. And in history, we usually do periodization because there is a longevity, there is, the length of time is so vast that we need to divide it into different periods, and we have given this periodization names. The first one is ancient, the second one is medieval, and the third one is modern. So basically, in order to understand history, in order to make sense of history, and in order to get the point right, we divide history into different periods. And for our own convenience and for our own help, the historians what have done, they have divided history into three periods. And this periodization is not something very fixed. It is, divided. It can be it is relatable to different historians. Many historians divide history according to their own convenience and according to their own methodology and according to their own ways. So this periodization concept is not some kind of a fixed phenomena or a fixed thing. No, periodization is not a fixed thing. It is flexible. It can be, periodization can, history or time can be divided into different periods through different ways and through different means for different purposes. In history, we divide time and period into three different categories. The first one is ancient. In ancient, the word ancient means in Urdu qadim. When we talk about ancient times, in Urdu we call it qadim zamana, bahut purana zamana. So when we talk about ancient times of India, so in this section we will be talking about the ancient history of India.
कदीम ज़माना हम हिंदुस्तान का देखेंगे। While the second one is medieval time period. Medieval कहते हैं दरमियाने को, जो दरमियान में होता है। So in medieval we will be talking about the medieval history of India. हम medieval history की हिंदुस्तान की बात करेंगे, हम देखेंगे इसको। And the third one is modern. What is modern? Basically it is the third stage of the division of time that is called as modern. सो वो जो थर्ड सेक्शन है उसमें फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे इंडिया की। सो दिस डिवीजन ऑफ टाइम इनटू डिफरेंट पीरियड्स इज क्वाइट इफेक्टिव। इसमें हमें मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को, मुख्तलिफ हिस्टोरिकल नैरेटिव्स को और मुख्तलिफ हिस्टोरिकल इवेंट्स को अंडरस्टैंड करने का हमें मौका मिलता है। एंड व्हेन वी डिवाइड दिस हिस्टोरिकल टाइम पीरियड इनटू एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न, we basically tried to cut a historical event or a historical process into different bits and parts, and those bits and parts are taken in singularity, and in that singularity we basically try to understand what is happening in that time period. Let me give you an example. Ancient time की अगर हम बात करें तो एंशिएंट टाइम में हम एंशिएंट ग्रीक की बात करेंगे। एंशिएंट टाइम की अगर हम बात करते हैं तो हम एंशिएंट रोमन्स की बात करेंगे। अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करेंगे तो सिंध में जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हम उसकी बात करेंगे। एंड सेम इज द केस व्हेन वी टॉक अबाउट एंशिएंट सिविलाइजेशंस, वी कैन टेक द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस जो मिस्र में है, जो इराक में है, एंड द इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो इजिप्ट के अंदर है। इसी तरह से मैक्सिको के अंदर, यूएस के अंदर जो है एंशिएंट टाइम पीरियड के अंदर जो लोग रहते थे, कदीम ज़माने में लोग रहते थे, तो वी इन एंशिएंट हिस्ट्री वी टॉक अबाउट द एंशिएंट पीपल and the ancient civilization, the ancient society, the ancient traditions, the ancient tools, the ancient values, the ancient language. जितना भी कदीम तारीख़ का हिस्सा होगा एंशिएंट टाइम पीरियड में जो है हम वो पढ़ेंगे। कमिंग टू इंडिया, जब हम एंशिएंट टाइम्स की बात करेंगे तो हम एंशिएंट इंडिया को पढ़ेंगे। और एंशिएंट इंडिया में दो चीज़ें होती हैं, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद से लेकर जब तक मुसलमान आते हैं, मुसलमानों तक जो टाइम पीरियड है उसको हिस्टोरियंस ने एंशिएंट में डिवाइड किया हुआ है। So when we will be talking about the ancient history of India, we will be taking up the history of India from ancient times till the arrival of Muslims, that is 1707. So till that time period, not 1707, 712. From ancient times to 712 जब मोहम्मद बिन कासिम आता है. So we have divided this. The second one is of medieval. The medieval history of each country, the medieval history of each civilization, the medieval history of each continent is different. जिस तरह से यूरोप की अगर हम medieval history की बात करेंगे तो एंशिएंट ग्रीक के बाद जो रोमन एम्पायर और उसके बाद जो चर्च की जो हिस्ट्री है अगर हम उसकी बात करेंगे तो दैट विल बी द medieval टाइम पीरियड ऑफ यूरोप। इसी तरह से अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे सो द medieval टाइम पीरियड ऑफ हिंदुस्तान विल बी मुसलमानों से मोहम्मद बिन कासिम 712 से शुरू होता है और आखिरी मुसलमान बादशाह तक, दैट इज़ 1857 और 1707, इसके अंदर इख्तलाफ है। सो द मिडीवल टाइम पीरियड हिंदुस्तान का। इसी तरह से अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री की बात करें तो उसमें जो एंशंट टाइम्स होगा हम एंशंट अरब को देखेंगे, कदीम अरेबिया को देखेंगे, लेकिन मिडीवल टाइम पीरियड में फिर हम जब प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम आते हैं तो प्रॉफिट से लेकर अब्बासी खिलाफत तक 1258 तक हम इसको देखेंगे। इसी तरह से ईरान की अपनी तारीख़ है, इसी तरह से इजिप्ट की अपनी तारीख़ है। सो हर मुल्क की अपनी तारीख़ उसके हिसाब से डिवाइड की गई है एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न में। सो व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मिडीवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें हम 712 से शुरू करेंगे मोहम्मद बिन कासिम से और 1707 तक जहाँ पे औरंगज़ेब आलमगीर की डेथ होती है वहाँ तक, या फिर बहादुर शाह जफ़र तक हम उसको मिडीवल में कंसिडर करते हैं। क्योंकि 1757 में ब्रिटिश आ जाता है हिंदुस्तान के अंदर,
तो वहाँ से फिर कुछ हिस्टोरियंस जो हैं वो मॉडर्न टाइम पीरियड शुरू कर देते हैं कि मॉडर्न आता है. So getting into modern, before getting into modern, let me just explain to you that what basically modern we mean about. What do we mean about modern? Modern है क्या चीज़? मॉडर्न की कोई ख़ास डेफिनेशन, कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि ये सोशल साइंसेस के कॉन्सेप्ट्स में जो है वो किसी भी चीज़ की डेफिनेशन नहीं होती. वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एंड दोज कॉन्सेप्ट्स आर टू बी अंडरस्टूड. And if you have to understand a concept, for that you have to see the characteristics of those things. So this modern concept, the word modern came out from Europe. जब यूरोप चेंज होता है, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि यूरोप एक मिडीवल टाइम पीरियड से गुजरा और बहुत डाउनफॉल उसका हुआ, लेकिन देन यूरोप का राइज हुआ, और राइज होने के बाद जो है वो वो एक पूरी पावर बन गया. सो जब यूरोप पावर बन गया और यूरोप जो है वो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हुआ, एंड व्हेन द यूरोप ट्रांसफॉर्म्ड, वहाँ से साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, और उसके बाद उन्होंने कॉलोनाइजेशन की, इंडिया को कब्ज़ा किया, अमेरिका को कब्ज़ा किया, पूरा अफ्रीका को कब्ज़ा किया. सो व्हेन यूरोप राइज होता है यूरोप का, सो वी स्टार्ट द टर्म मॉडर्न फ्रॉम दैट पॉइंट, क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री है वो बेसिकली यूरोसेंट्रिक है. बाय यूरोसेंट्रिक वी मीन कि हम यूरोप को अपना आइडियल मानते हैं, अपने हिस्टोरियंस और अपना साउथ एशियंस जो हैं. खैर अब तो ये दिस ट्रेंड हैज़ बीन चेंज फॉर लॉट ऑफ टाइम पीरियड, कि हम यूरोप को देखना हमने छोड़ दिया है हिस्टोरिकली. बट नाउ जो हमारा कोर्स और हमारी जो हिस्टोरिकल डिस्कोर्स की बेसिस रखी गई है, उसमें बेसिकली वो यूरोसेंट्रिक, यूरोप की तरफ जो है वो देखते थे और यूरोप को अपना आइडियल मानते थे. सो व्हेन यू लुक एट यूरोप एंड व्हेन यू टेक यूरोप एज एन आइडियल, देन आपका मॉडर्न वहाँ से शुरू होता है. हिंदुस्तान का मॉडर्न अपने हिसाब से शुरू होता है, बट चूंकि ब्रिटिश जब आता है 1757 में, ब्रिटिश कम्स टू इंडिया, when British came to India, we start the term modern from that time period. So it is basically 1757. So coming to the last point of concept of periodization, that is the importance of periodization. That why is periodization so important? Periodization is quite important. The only and one reason for that is कि हिस्ट्री और तारीख बहुत लंबा, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. हज़ारों सालों की तारीख को आप वन गो में नहीं पढ़ सकते. आप हज़ारों साल की जो तारीख है उसको, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस लॉन्ग हिस्ट्री इन जस्ट वन सिटिंग और इन जस्ट वन टाइम फ्रेम. यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट. जैसे कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया कि टाइम एंड स्पेस का कॉन्सेप्ट है. टाइम चेंज होता है, स्पेस चेंज होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं, एंड व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक्स आर चेंज्ड, कॉन्सेप्ट्स चेंज हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाती है. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि 1947 में जो लोग ड्रेस पहनते थे कराची के अंदर, या तब तो इस्लामाबाद नहीं था, लाहौर के अंदर, वो आज लाहौर और कराची में वही ड्रेसेस नहीं पहने जाते हैं. सो टाइम चेंज्ड, value changed, and then your characteristics change, and everything just changed with the change in space and time. So इसी तरह से आप history, this long process of history को जब आप study करते हैं, it changes through space and through time in different ways and different in different boxes, you can say that. So ancient time, when we divide time into ancient, medieval and modern, ancient time has its own characteristics, medieval has its own characteristics, and the modern has its own characteristics. So you have to understand that period of time, whether it is ancient, medieval or modern, through understanding those characteristics. So this division of time, and this division of time into different periods, make us things easily for our own understanding. हम चीज़ों को आसानी से understand कर लेते हैं. Number one. Number two, when history or time is divided into different pieces in bits, it is physically possible to get your hands on that. आप history को और
तारीख को जब छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हो, फिर ये आपके लिए आसान हो जाता है अंडरस्टैंड करना, उसके ऊपर डिबेट करना, उसको कंपेयर करना और उसको समझना. सो दैट्स वाई हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू different periods. So, moving ahead, the first thing which we will be discussing is the ancient India, that is from 2000 BC to 700 AD. अब ancient India से मुराद क्या है? What do we mean by ancient India? Ancient India को हम उर्दू में कहते हैं कदीम हिंदुस्तान, बहुत पुराना हिंदुस्तान, तारीख से पहले वाला हिंदुस्तान. ठीक है. सो बाय व्हेन वी टॉक अबाउट एंशिएंट इंडिया, वी बेसिकली टॉक अबाउट गोइंग बैक 2000 BC. It is 2000. Today we are living in 2021 AD, and when we go back to 2000 BC, we are basically talking about 4000 years. So 4 to 5000 years की जो तारीख, जो पहले लोग वहाँ पर हिंदुस्तान में रहते थे, हम उसके बारे में बात करेंगे. We will try to understand कि in ancient India किस तरह के लोग रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनके शहर कैसे थे, वो किस तरह के घरों में रहते थे, वो किस तरह का मजहब फॉलो करते थे, उनका कल्चर क्या था, वो ज़ुबान कौन सी बोलते थे, वो रहते किस तरह से थे, उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था, व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, हाउ दे लिव्ड देयर. सो व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट एंशिएंट इंडिया, हम 4 से 5,000 साल पहले जो हिंदुस्तान के अंदर लोग रहते थे, उनका रहन सहन, उनकी ज़िंदगी, उनका बूदोबाश, वी विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट. सो इन एंशिएंट इंडिया, जैसे कि आप देख सकते हैं मैप में, जो सबसे पहले हमें तारीख में चीज़ मिलती है, वो हमें मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन. जितने भी स्टूडेंट्स सिंध से हैं, they can understand it, they can understand this importance of Indus Valley civilization, and maybe बहुत से लोग मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जाकर उन्होंने वो जगह देखी होंगी. So इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इस मैप में आप देख सकते हो कि ये मैप जो है वो 2600 से 1900 BCE, BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा. इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो शहर आते हैं, और उस मैप में आप देख सकते हो कि इसमें जिस तरह के मंडा एक शहर है, रोपार एक शहर है, हड़प्पा मेन शहर है, गानी वेरवाला इज another city, धोलावीरा is another city. Fine. Mohenjo-daro is another city. So in this map you can understand that Indus Valley civilization किस शहर से लेकर किस शहर तक था. It spread across both Punjab and Sindh. So in Indus Valley civilization, it was very great civilization. It was the first civilization. It was among the first few civilizations जहाँ पर लोग जो है वो हमें तारीख में मिलते हैं. So ये वो एरियाज हैं जहाँ पर यहाँ के लोग रहते थे. अच्छा, now coming to the characteristics of Indus Valley civilization. That what were the characteristics of that Indus Valley civilization? What kind of people lived there? What kind of cities were there? What kind of roads were there? What kind of sanitation system they had? What kind of political and social structure they had at that time period? So when you're talking about 2000 years ago, आपको बेसिकली कागजात में नहीं वो मिलेगी, आपको बेसिकली वो एक्सकवेशन से मिलेगी. आप ज़मीन की खुदाई करेंगे, वहाँ से आपको शहर मिलेंगे, वहाँ से आपको उनके असरात मिलेंगे. सो ये बेसिकली आर्कियोलॉजी के अंदर आता है, और आर्कियोलॉजी के अंदर जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्टडी होती है. वी आर स्टडीइंग इट बिकॉज इन द कोर्स पाकिस्तान स्टडीज़ it is quite important for us to understand what kind of people lived here 2 to 5,000 years ago, and then we can relate ourselves and we can trace our history from that point of time. So जो दो मेन cities थी, two main cities in Indus Valley civilizations were the Mohenjo-daro and Harappa. These two were the main cities which existed in Indus Valley civilization. So both Mohenjo-daro and Harappa, these were the main centers of Indus Valley civilization up till now. इसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है, इसके ऊपर जो है रिसर्च हो रही है, तहकीक हो रही है, पता लग रहा है, नई नई चीज़ें दरियाफ्त हो रही हैं.
So up till now, we know that the two main cities of Indus Valley were Harappa and Mohenjo-daro. The second characteristics of Indus Valley civilization is that it was an urban civilization. What do we mean by urban civilization? Urban कहते हैं जी उर्दू में शहरी को, और civilization कहते हैं तहजीब को. So Indus Valley civilization was the first urban civilization. It was the first शहरी civilization. शहरी तहजीब थी ये. What do we mean by urban civilization? इस बात का मतलब क्या है कि वो शहरी तहजीब थी? इसका बात का मतलब ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो इतना डेवलप हो चुका था, वो इतना तरक्की याफ्ता हो चुका था कि वहाँ पर बाकायदा शहर आबाद थे. लोग शहर की शक्ल में लोग वहाँ पर रहते थे. सो शहर से क्या मुराद है? शहर से मुराद ये है कि शहर के अराउंड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लोगों की होती है, वहाँ पर ट्रेड की एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पर लोग आपस में सोशली इंटरेक्ट करते हैं. एंड व्हेन पीपल आर लिविंग इन सिटीज़ दे हैव दिस काइंड ऑफ दे हैव देयर ओन काइंड ऑफ रिलीजन, दे हैव देयर ओन स्पेसिफिक काइंड ऑफ कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, दे हैव कल्चरल वैल्यूज, दे हैव डिफरेंट सोसाइटल ट्रेड्स, there do exist such societal traits. So इस अर्बन सिविलाइजेशन में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि शहर एग्जिस्ट करते हैं. और आजकल के शहर आप जहन में ले आएँ, जिस तरह से बड़े बड़े शहर है, लाहौर है, कराची है, फैसलाबाद, मुल्तान, कोयटा, गुजरांवाला, इस्लामाबाद. इन शहरों में आपको क्या नज़र आता है? इन शहरों को जब आप देखते हैं आपको रोड कंस्ट्रक्शन नज़र आती है, आपको बड़े बिल्डिंग्स नज़र आते हैं, आपको मंडियाँ नज़र आती हैं, आपको जो है सराय होटल्स नज़र आते हैं. सो अ सिटी इज़ अ फुली काइंड ऑफ डेवलप्ड एक पॉपुलेटेड एरिया है जहाँ पर लोगों को हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं. सो सेम वाज द केस विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहाँ पर मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा वर फुल फ्लेज सिटीज़. And not only cities, there were markets and there were trade hubs in both these cities. So इन दो शहरों के अंदर ये पूरी एक अर्बन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी. हाउएवर और बहुत से शहर थे, लेकिन ये दो शहर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये दो शहर ज़्यादा हमें फ़िलहाल नज़र आते हैं. हो सकता है कोई बाद में कोई तहकीक हो तो कोई एक और शहर इमर्ज हो जाए, लेकिन अब टिल नाउ दीज टू सिटीज़ आर द ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस up till now. So the characteristic of Indus Valley civilization was that it was an urban civilization. So you can understand that even 5,000 years ago, or 4,000 years ago, or 3,000 years ago, or 2,000 years ago, Indus Valley civilization was a fully grown civilization. एंड कम्पेयर टू इंडस वैली सिविलाइजेशन उस वक़्त के इराक़ में, मिस्र में जो थी सिविलाइजेशंस होती थी. इराक़ में जो था वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, और मिस्र में जो है वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन. इन सिविलाइजेशंस के साथ बाकायदा इंडस वैली सिविलाइजेशन की ट्रेड होती थी. और ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये बेसिकली एग्जिस्ट कहाँ करती थी? ये दरियाए सिंध के आसपास. एक और चीज़ आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि पहले ज़माने में लोग सिर्फ वहाँ रहते थे जहाँ पर पानी होता था, क्योंकि पानी के बगैर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल था. सो इसलिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इट वाज द रिवर सिविलाइजेशन, और ये रिवर के आसपास रहती थी. और हिंदुस्तान में भी ये उसको दो मुख्तलिफ रिवर्स हैं, आपने नाम सुने होंगे, गंगा, जमुना. सो इंडो गेंजेटिक सिविलाइजेशन भी इसको कहते हैं कि हिंदुस्तान में गंगा जमुना के आसपास लोग रहते थे, और जो आजकल का पाकिस्तान है, इस एरिया में जो है वो दरिया सिंध के आसपास लोग रहते थे. सो इस दरिया के आसपास जो है वो लोगों के रहने की वजह से एक पूरी शहरी सिविलाइजेशन इमर्ज हुई. और ये हमें कोई 5,000 साल पहले की तारीख़ का हमें पता देती है कि हाउ पीपल लिव्ड देयर. The third characteristic of Indus Valley civilization was that central authority existed. अच्छा, अब what do we mean by central authority? एक तो होती है there is a word called as authority. First we need to understand what do we mean by authority. Authority का मतलब क्या है?
अथॉरिटी का मतलब है पावर सेंटर, कि पावर होती कहाँ है, यानी वेयर डज द सेंटर ऑफ पावर लाई, ताकत का सरचश्मा होता किधर है। सो सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब ये है कि जब सेंटर के अंदर किसी रूलर के पास ताकत का मंबा हो, ताकत का सेंटर हो, देन इट इज कॉल्ड ए सेंट्रल अथॉरिटी। सो इन इंडस वैली सिविलाइजेशन जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उस वक़्त का, जो उस वक़्त के रूलर होते थे, वो ही उसके हाथों में ताकत होती थी। सो द किंग और द क्वीन at that time period was all powerful. So it means kingship existed there. So अब किंगशिप अगर एग्जिस्ट करती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, so आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि what kind of civilization that could be. तो all political authority was centralized. And by centralized political authority we mean कि उसमें आर्मी, उसमें ब्यूरोक्रेसी, उसमें किंग, उसमें कोर्ट्स, उसमें अमीर, उसमें एरिस्टोक्रेट्स, each and everyone was under the command of a ruler or a king. So the word of the king was considered as a law. जो अल्फाज होते हैं किंग या बादशाह के, वो कानून का दर्जा रखते हैं, whatever he says. So absolute power or absolute authority existed in Indus Valley civilization. Well, the fourth characteristic of Indus Valley civilization was जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, वो एग्रीकल्चर था. As I told you earlier that in the Indo-Gangetic plains, जो गंगा जमुना और दरिया सिंध के आसपास लोग रहते थे, वहाँ पे पानी होता था और दरिया के पानी से ही लोग अपना गुजारा करते थे. तो उसके जो आसपास जितनी भी ज़मीनें थी वो जो ज़रखेज़ होती थी, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर एग्रीकल्चर का काम होना था. आज भी दरिया सिंध और पंजाब में आप देख लें, दरिया रावी और बाकी चनाब वगैरह जितने भी दरिया हैं, उसके आसपास सारी ज़मीनें जो हैं वो दे आर फर्टाइल लैंड्स, वहाँ पर एग्रीकल्चर होता है. सो सेम वाज द केस इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वेयर द प्लेस अराउंड रिवर इंडस एंड द इंडो गेंजेटिक प्लेन, वहाँ पर जो है वो एग्रीकल्चर होता था, वहाँ पर प्लांटेशन होती थी. और लोगों का जो स्टेट का जो उस वक्त नॉट स्टेट, द एम्पायर का जो उस वक्त civilization की जो source of income थी, that was the agriculture. So agriculture was the main source. However, trade भी exist करता था. यहाँ से मसाले, यहाँ से घोड़े और यहाँ से हाथी और यहाँ से फ्रूट ये बाहर जाते थे, और वो इराक में भी जाते थे और मिस्र में भी जाते थे. So they had trade links back at that time too. But however, the main source of income जो थी एग्जिस्ट करती थी, that was the agriculture. और एग्रीकल्चर में जितनी भी ज़मीन थी वो किंग क्वीन के पास, दैट बिलोंग टू द किंग. एंड उसमें जितनी भी काश्तकारी वगैरह होती थी, उस काश्तकारी के बाद किसानों को या तो खाने के लिए कुछ दे दिया जाता था, या उनका अपना एक हिस्सा मुकर्रर होता था. और उसका हिस्सा मुकर्रर होने के बाद जो बाकी जितना भी रह जाता था, वो सब का सब हुकूमत के ख़जाने में चला जाता था. और फिर उस ख़जाने के चलाने के बाद उससे मेन काम हुकूमत ये करती थी कि अपना जो स्टेट क्राफ्ट है, जो मुल्क की तरह उस वक़्त की जो डेवलपमेंट है, जो सिटी बनाना है, कोई कैथीड्रल एक रिलीजियस वर्शिप बनानी है, प्लेस बनानी है, या सैनिटेशन का सिस्टम बनाना है, तो वो स्टेट जो थी वो एम्पायर उस वक़्त करती होती थी. सो दैट वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम वाज एग्रीकल्चर. वन इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि आज तक ये एविडेंस फ़िलहाल नहीं मिला कि वहाँ पर क्या कोई जंगी सामान भी एग्जिस्ट करता था कि नहीं. इसके ऊपर रिसर्च चल रही है. मे बी रिसेंटली हो सकता है कोई नई डेवलपमेंट हो जाए, उस नई डेवलपमेंट में फिर पता लग जाए कि यहाँ पर जो है जंगी सामान भी एग्जिस्ट करता था. सो अप टिल नाउ साइंटिस्ट डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सच एविडेंस दैट the instruments of war do not exist in this very civilization. Maybe बाद में पता लग जाए, लेकिन but up till now it is considered as a peaceful civilization, कि जहाँ पर लोगों ने जो है वो पीस के साथ रहना सीख लिया था, लोग जंग नहीं करते थे. अभी तक की ये
अजम्पशन है, और ये अजम्पशन किसी भी वक्त चेंज हो सकती है अगर नया एविडेंस मिलता है. लास्ट पॉइंट, एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशंट इंडिया इज दैट writing existed. Writing is very important for a civilization. कि writing जो है it is very important. सबसे पहले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की राइटिंग पे जाने से पहले लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट बेसिकली राइटिंग डज. राइटिंग करता क्या है. लेट्स से 1000 साल पहले किसी एक शख्स ने किसी दूसरे शख्स को कोई बात कही. सो व्हाट डू यू थिंक कि वो 1000 साल बाद वो बात हम तक पहुंच जाएगी. इट इज़ रेयरली पॉसिबल. बहुत मुश्किल है कि वो ज़ुबानी कही हुई बात हम तक पहुंच जाए. लेकिन अगर वो वही बात किसी चीज़ के ऊपर वो लिख ली जाती है और वो बंदा मर भी जाता है, लेकिन ये कागज़ या पत्थर या कोई पत्ता 1000 साल बाद किसी और शख्स के पास चला जाए और उसको देखे, तो वो उस बात को पढ़कर ये समझ सकता है कि 1000 साल पहले एक शख्स ने एक बात की थी. सो राइटिंग में बेसिकली थिंग्स आर प्रिजर्व्ड इन राइटिंग. When things are preserved in writing, then they can move from one civilization to another civilization, from one generation to another generation, from one society to another society, or even from one state to another state. So writing, what is the purpose of writing? The purpose of writing is to preserve the things. And when things are preserved, then they can be developed. एक दफ़ा चीज़ें preserve हो जाए ना, तो फिर उसके ऊपर development आगे हो सकती है. So writing in Indus Valley civilization is very important that writing existed in Indus Valley civilization, but आज तक वो decipher नहीं हुई. decipher से मराद ये है कि हम उसको समझ नहीं पाए कि वो किस तरह की जो है वो writing थी. अच्छा, अब वो राइटिंग आपके जहन में शायद ये सवाल पैदा हो जाए कि वो राइटिंग एग्जिस्ट किस तरह से करती, वो किस शक्ल में थी. क्या वो कागज़ के ऊपर थी, क्या वो पत्ते के ऊपर थी, किस चीज़ के ऊपर थी. वो बेसिकली एक पत्थरों के ऊपर होती थी. मट्टी के स्क्वायर टैबलेट्स बनाए जाते हैं. जो मट्टी का स्क्वायर टैबलेट है उसके ऊपर परिंदे, जानवर, फूल और इंसान वगैरह की छोटी छोटी तस्वीरें बनी हुई हैं. इसको हम कहते हैं क्यूनाफॉर्म. क्ले टैबलेट्स के ऊपर जो है जो छोटी छोटी तस्वीरें बनी हुई हैं, आपने शायद कहीं देखी होंगी. तो वो जो टैबलेट्स हैं उसके ऊपर इन तस्वीरों को शक्ल में जो है वो राइटिंग लिखी गई है, उसको क्यूनाफॉर्म कहते हैं या पिक्टोग्राम भी कहते हैं. ठीक है. सो पिक्टोग्राम जो है की शक्ल में जो है वहाँ पर ये चीज़ मौजूद है, जो अभी तक साइंटिस्ट डिसाइफर नहीं कर पाए. उसके ऊपर तहकीक चल रही है. हो सकता है इन कमिंग टाइम्स ये चीज़ जो है वो डिसाइफर हो जाए, हमें पता लग जाए कि वहाँ के लोग बोलते क्या थे. ठीक है. सो राइटिंग एग्जिस्टेड. गिविंग फास्ट recap of the characteristics of Indus Valley civilization is that Mohenjo-daro and Harappa were the two main cities. The second one is that it was an urban civilization. The third characteristic of it is that central authority existed, and the fourth one was the a source of income was agriculture, and the last one was that writing existed in Indus Valley civilization, but it is not deciphered yet. So coming to the downfall of Indus Valley civilization, हमने 5000 साल की तारीख देखने के बाद हिंदुस्तान की, उसमें देखा जी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी. And when the Indus Valley civilization existed, we looked at its characteristics, or we looked at its political structure and how society and how things existed in there. So at a time comes कि ये Indus Valley civilization ख़त्म हो जाती है. यहाँ के लोग, यहाँ के शहर, यहाँ की ज़मीनें एंड यहाँ के किंग्स वगैरह यहाँ गायब हो जाते हैं. So the question rises, where did Indus Valley civilization go? Indus Valley civilization चला कहाँ गया? इतनी बड़ी civilization थी, इतने बड़े जो थे वो यहाँ पर सिटी और बाकी चीज़ें एग्जिस्ट करती थी, बट एकदम से ये चीज़ ख़त्म हो जाती है. Where did the civilization go? So scientists के बेसिकली 3 theories हैं about डाउनफॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन.
There are basically three theories, and by theory I mean कि ये कोई बात कंफर्म नहीं है. थ्योरी से मुराद ये है कि एक बात है, उसको चैलेंज किया जा सकता है, वो बात चैलेंजेबल है, एंड दैट कैन बी चैलेंज एंड दैट कैन बी ओवरटर्न्ड, एंड that theory can be overturned, new things can come up. But we have three theories regarding the downfall of Indus Valley civilization, कि यहाँ पे जो लोग रहते थे इंडस दरिया सिंध के आसपास जो लोग रहते थे, 5000 साल उनकी तारीख है, वो चले आखिर कहाँ गए. सो द फर्स्ट theories of floods, साइंटिस्ट्स का ख्याल है एविडेंस चेक करने के बाद और वहाँ के एरिया को सर्च करने के बाद, द फर्स्ट वन इज़ दैट फ्लड्स आए हैं, शायद फ्लड्स आए हैं. और चूंकि दरिया के किनारे पहले सिस्टम यही होता था और आजकल भी ऑलमोस्ट यही है कि दरिया के किनारे जब कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो सैलाब आ जाते हैं और सारी ज़मीन जो है वो दैट्स कवर्ड बाय फ्लड्स. सो the first theory is that there might be floods. There might have been such a time period जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हों, and maybe the river was overflown and there was floods and all the area around the Indus Valley civilization was covered by water and none of the people and not even a single person escaped. So the whole civilization just drowned. पूरी civilization जो है वो गर्क हो गई. So this is the first theory के जो है कि फ्लड्स आए और यहाँ पर लोग मारे गए. अब इसके अगेंस्ट और भी थेरीज हैं, इस बात को चैलेंज भी किया जा सकता है, एंड इट कैन बी ओवरटर्न टू. ऑब्वियसली एनीथिंग, जब थेरी को आप चैलेंज करते हो, जब थेरी चैलेंज होती है तो उसके लिए नए एविडेंस की ज़रूरत होती है, नए सबूत की ज़रूरत होती है. So that theory is do exist there, but it is challenged. And the second theory is that there was an Aryan attack. What do we mean by Aryan attack? आर्यन उन लोगों के कहते हैं जो सेंट्रल एशिया में रहते हैं. आजकल जो उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह जो एरिया है, यहाँ के जो पुराने ज़माने के लोग होते थे, ये बड़े जंगजू होते थे और ये चाइना पर भी अटैक किया उन्होंने, हिंदुस्तान पर भी अटैक किया और बहुत सारे एरियाज़ को उन्होंने कैप्चर किया. सो इट इज़ कंसिडर्ड दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो फॉल है वो इस वजह से हुआ कि यहाँ पर आर्यंस ने अटैक किया. इसके लिए वो ज़्यादा ऑब्वियसली जब आर्यन अटैक करेंगे वो यहाँ के लोगों को कत्ल करेंगे. जब लोगों को कत्ल करेंगे तो यहाँ पे कम से कम ज़मीन के अंदर से कुछ खोपड़ियाँ, कुछ हड्डियाँ, कुछ जंग वाला सामान हमें मिलना चाहिए, जो कि थोड़ा बहुत मिला है, लेकिन ज़्यादातर इसको कंसिडर नहीं किया जाता. बट दिस इज़ द सेकंड थ्योरी दैट दे प्रोबेबली देयर माइट हैव बीन, क्योंकि आर्यन बाद में वैसे आ भी जाते हैं. So Aryans की existence का हमें पता है, but we exactly don't know that if they had any collision with the people of Indus Valley civilization. So Aryans came to India at a later stage when they came, but this theory exists, the second theory, that maybe there had been an Aryan attack due to which the whole Indus Valley civilization just vanished. While the third theory is about the migration. दैट हो सकता है कि यहाँ का जो इंडस रिवर है, जो लोग दरिया के किनारे रहते हैं, जो लोग दरिया के आसपास रहते हैं, वो जानते हैं कि दरिया अपना रुख चेंज करता रहता है. सो साइंटिस्ट्स थिंक ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट, दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट मे बी दरिया सिंध ने अपना रुख तब्दील कर लिया और दरिया सिंध के अपना रुख तब्दील करने की वजह से तो यहाँ से पानी चला गया, और जब पानी चला गया तो यहाँ से खुश्कसाली हो गई, एंड व्हेन देयर वाज ड्राउट हियर, so people slowly and gradually migrated from this place and they went from here. So these three theories are about the downfall of Indus Valley civilization, that इन तीन theories के मुताबिक हो सकता है कि या तो floods आए हों, या आर्यन अटैक हुआ, या migration हुई है, या हो सकता है तीनों हुए हों. So we are not yet confirmed, but these three theories do exist about the fall of Indus Valley civilization. So after the downfall of Indus Valley civilization, then we come to मैं उसको ये shortly और मुख्तसर जो है वो आपको ये बाकी हिस्ट्री इंडस वैली की मैंने ज़रा इन डिटेल बता दी. The rest of the history is वो बहुत ज़्यादा इन डिटेल में नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो एंशेंट इंडिया की जो है वो कोई आपके सिलेबस के हिसाब से या फिर किसी और एग्ज़ाम के हवाले से वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. हर हिस्ट्री इम्पोर्टेंट होती है,
बट ये जो उसके बाद इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, ये चूँकि आपके कोर्स का हिस्सा ज़्यादातर नहीं है, लेकिन लिंक क्रिएट करने के लिए और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए वो ज़रूरी है. So after the downfall of Indus Valley civilization, then came the Aryans, and the Aryans came in the 6th century BC. So it means almost 6,000 years ago they came here. So आर्यंस के बाद जो है वो जो दूसरे लोग यहाँ पर हुकूमत करते हैं उनको हम नंदास कहते हैं, NANDAS. तो उनको we call them Nandas, and they established their own dynasty over here in India, and till 320 BC, they established they had their rules. And नंदास के अंदर एक शख्स है, नंदास के बाद मौर्य आते हैं. मौर्य जो है मौर्य डायनेस्टी उसको कहते हैं. डायनेस्टी कहते हैं बेसिकली फैमिली रूल को, कि जब एक ख़ानदान हुकूमत करता है वी कॉल इट डायनेस्टी. सो आफ्टर नंदास देन केम द मौर्यास, और MAURYA मौर्य. मौर्य में एक रूलर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उस रूलर का नाम है चंद्रगुप्ता मौर्य. एंड दैट चंद्रगुप्ता मौर्य वॉज द फर्स्ट रूलर, वो पहला हुक्मरान था जिसने पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया और पूरे हिंदुस्तान को यूनाइट किया. सो ही वॉज द फर्स्ट वन. और उसका जो ग्रैंड सन था, जो उसका पोता था, ही वॉज अशोका. सो चंद्रगुप्ता मौर्य का जो पोता था अशोका, आपने शाहरुख खान की शायद वो मूवी अशोका देखी होगी, तो उसमें वो अशोका की पूरी वो लाइफ बताता है, और वो you basically have an idea about the Mauryan Empire, how it existed there. So Ashoka was the first person जो हिंदुइज्म से बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गया. अच्छा, पहले जो इनका रिलीजन था, ये जितने भी नंदास थे, उनका जो रिलीजन था वो बुद्धिज़्म, वो दैट वाज हिंदू, दे वर हिंदू रिलीजियस. लेकिन अशोका कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म. व्हेन अशोका कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो बुद्धिस्ट जो मज़हब है वो फैलना शुरू हुआ, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो बुद्ध मत मज़हब का पैरोकार बनने लगे, और वहीं पर जो है उनके मजहबी इबादत, और आजकल जो आपको तख्तवाई में पाकिस्तान के अंदर और हिंदुस्तान में बहुत से एरियाज़ में आपको बुद्धिस्ट रिमेन्स नज़र आते हैं, ये बेसिकली अशोका के टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारी स्टेट लेवल पे बुद्धिस्ट रिलीजन की जो है वो प्रीचिंग हुई, एंड पीपल कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म, एंड दे बुद्धिस्ट रिलीजन इन इंडिया. अच्छा, अब चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में उसका एक वज़ीर है, उस वज़ीर का नाम है कुतैलिया. उस शख्स ने एक किताब लिखी है, और उस किताब का नाम है अर्थशास्त्र. अच्छा, हमें जो उस वक़्त के, उस ज़माने की अंडरस्टैंडिंग हमें बेसिकली मिलती है, वो उस किताब से मिलती है जो इतने हज़ार साल पुरानी लिखी गई थी, और उस किताब का नाम है अर्थशास्त्र, और उसका जो राइटर है उसका नाम है कुतैलिया. और कुतैलिया जो था वो ही वॉज ए मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. So Chandragupta Maurya dynasty was a very strong dynasty. It spanned all across India, and its grandson Ashoka, united India again. और अशोका के डेथ के बाद जो अशोका के 3 बेटे थे, उन बेटों में डिवीज़न होती है, और डिवीज़न होने के बाद आपस में लड़ाई करते हैं, और लड़ाई करने के बाद हिंदुस्तान टूट फूट का शिकार हो जाती है, हिंदुस्तान तकसीम हो जाता है. तो हिंदुस्तान की तकसीम के बाद एक और शख्स उठता है, उसका फिर नाम चंद्रगुप्त मौर्य है. ये दूसरा ये द फर्स्ट वन वाज चंद्रगुप्त मौर्य, द सेकंड वन इज अगेन चंद्रगुप्त मौर्य 2. तो जो चंद्रगुप्त मौर्य 2 है वो नई डायनेस्टी का क़याम अमल में लाता है, और उस एंड दैट डायनेस्टी इज कॉल्ड एज गुप्ता डायनेस्टी. सो व्हेन गुप्ता डायनेस्टी जो है वो रही, चंद्रगुप्त मौर्य 2, उसने हिंदुस्तान को दोबारा से यूनाइट किया, और हिंदुस्तान को दोबारा से यूनाइट करने के बाद हिंदुस्तान में एक इफेक्टिव रूल कायम किया. और रूल कायम करने के बाद जब वो चंद्रगुप्त मौर्य 2 की डेथ होती है, तो उसके डेथ के बाद दोबारा जो है हिंदुस्तान टूट फूट का शिकार हो जाता है. तो हिंदुस्तान के टूट फूट के शिकार होने के बाद हिंदुस्तान के नॉर्थ में एक अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ जो है वो एक डायनेस्टी कायम होती है, उसको हम कहते हैं हिंदू शाहिया डायनेस्टी.
तो जो हिंदू शाहिया डायनेस्टी थी वो जब इस्टेब्लिश हुई तो उस ज़माने में फिर हिंदुस्तान में मुसलमान आए. सो मुसलमानों के आने से पहले पहले तक जितनी भी हिस्ट्री है उसकी हिंदुस्तान की, दैट हिस्ट्री इज़ कॉल्ड एज एंशंट इंडिया. एंड दिस वाज बेसिकली एक ओवरव्यू आपको दे दिया हिंदुस्तान के एंशंट हिस्ट्री के बारे में कि हाउ इन कदीम हिंदुस्तान किस तरह का होता था. इसके साथ साथ जो है लेट्स नाउ वी विल मूव अहेड टू द स्टेट एंड सोसाइटी इन एंशंट इंडिया. रियासत कैसे होती थी और मुआशरा कैसे होता था, वहाँ का पॉलिटिकल स्टेट का स्ट्रक्चर कैसे होता था और मुआशरे में लोग कैसे रहते थे. नाउ वी विल डिस्कस दैट. स्टेट वॉज सेंट्रलाइज्ड विद द रूलर एट द टॉप. जो स्टेट थी, जो रियासत थी, वो पूरी एक सेंट्रल अथॉरिटी की, जैसे कि इन प्रीवियस पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि सेंट्रल अथॉरिटी एग्जिस्ट करती थी एंड द किंग वाज एट द टॉप ऑफ एवरीथिंग. ही वाज द टॉप ऑफ he stood at the top of everything. He was the supreme being at that time. हिंदुस्तान के एंशिएंट टाइम्स में, कदीम ज़माने में बादशाह ही सब कुछ होता था और उसके पास सारे के सारे इख्तियारात होते थे. The second point is state was considered as his estate. estate. अच्छा, estate कहते हैं जागीर को, मलकियत को. कोई ज़मीन का टुकड़ा है, वो आपके नाम पर है, तो आप उस ज़मीन के उस टुकड़े के मालिक हुए, वो आपकी जागीर हुई. सो स्टेट वॉज कंसिडर्ड एज हिज estate. तो जितनी भी रियासत थी पूरी हिंदुस्तान की, वो सारी की सारी उस बादशाह की, उस किंग की, उस रूलर की ज़ाती मिल्कियत और ज़ाती जागीर होती थी. इस तरह का सिस्टम नहीं था, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. जो कॉमन लोग थे उनके पास अपने कोई घर नहीं होते थे. वो जो उनके घर, वो जो उनकी ज़मीन होती थी, दैट ऑल बिलोंग्ड टू द रूलर. वो सब का सब जो था वो किसके पास होता था? वो किंग के पास होता था. एंड किंग वॉज एब्सोल्यूट इन हिज रूल. The third point is a structure of bureaucracy existed that run the empire. अच्छा, ब्यूरोक्रेसी का वर्ड आपने काफ़ी अखबार में सुना होगा, न्यूज़ में सुना होगा. व्हाट डज वी मीन बाय ब्यूरोक्रेसी? ब्यूरोक्रेसी कहते हैं वो सरकारी मुलाजिम, वो हुकूमत के मुलाजिम जो मुल्क के काम चलाते हैं. जिस तरह से एक असिस्टेंट कमिश्नर है, एक डेप्यूटी कमिश्नर है आजकल के ज़माने में, वो एक ज़िला, वो एक डिस्ट्रिक्ट, ही कंट्रोल्स द डिस्ट्रिक्ट, वो कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील. सेम वॉज द केस ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड कि एंशिएंट टाइम में पूरी ब्यूरोक्रेसी का एक स्ट्रक्चर होता था. वहाँ पे सरकारी मुलाजिम होते थे और उन सरकारी मुलाजिमों का ये काम होता था कि वो इस पूरे जो किंग, जो बादशाह है, उसके ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना. जैसे कि कुछ लोग होते थे, वो हिंदुस्तान के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक वो रेवेन्यू इकट्ठा करते थे. आर्मी होती थी, वो लाइन ऑर्डर को देखती थी. स्पाई सिस्टम होता था, वो जासूसी करता था. पोस्ट का निज़ाम होता था, वो डाक का काम करते थे. एंड दे जस्ट दैट वाज अ पोस्टल सिस्टम इन इंडिया दैट एग्जिस्टेड बिफोर सो मेनी टाइम्स. सो बिफोर एनी काइंड ऑफ फॉर्मल जो आजकल का हमारा पोस्टल सिस्टम है, इससे पहले बहुत एग्जिस्ट करता होता था. ठीक है. सो there was a complete bureaucratic structure that existed within India in the ancient times. तो पूरे स्टेट ऑफिशियल्स होते थे, मिनिस्टर, कॉर्टियर्स और बाकी सारे होते थे. एंड दे वुड जस्ट execute the orders of the king. The next point is source of revenue was agriculture. However, trade existed. As earlier I told you कि जो मेन सोर्स होता था पूरे हिंदुस्तान के अंदर रेवेन्यू का, पैसों का, इकोनॉमी का, दैट वाज एग्रीकल्चर. हिंदुस्तान में ज़रख़ेज़ ज़मीनें बहुत होती थी. पंजाब का ये सारा एरिया, गंगा जमुना वाला एरिया और साथ में ये इंडस वाला एरिया, ये जितना भी एरिया, बंगाल, स्पेशली बंगाल को हम भूल रहे हैं. सो द बंगाल का जो एरिया था, जो आजकल का बांग्लादेश है, उस वहाँ पर तो पानी पानी है. तो वो जो एरिया है ये बहुत ज़रख़ेज़ होते थे. तो यहाँ पर बहुत सारे फसल जो थे वो बनते होते थे. यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट होता था, यहाँ से स्टेट अपना रेवेन्यू जनरेट करती थी और बहुत ज़्यादा रेवेन्यू होता था, बहुत ज़्यादा तादाद में. सो रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू वॉज एग्रीकल्चर. However, trade existed, and trade was among the states, and it was among the different civilizations that existed at that time there. And the last point is that
society was divided, both caste based Hindu caste system and class based, high class and lower class. कि जो सोसाइटी थी, जो मुआशरे में लोग रहते थे, वो डिवीजन का शिकार था, वो तकसीम थी उसमें कि हिंदू जो कास्ट सिस्टम है जिसमें ब्राह्मण, कश्तरी, देन वेश, and then Shudra, and then the untouchable Dalit, जिसको हम कहते हैं. So there were different hierarchies in the different categories in the caste system. In the social structure of India at that time, it was division was very clear. कोई यूनिफॉर्म, कोई सब लोग बराबर नहीं थे, तकसीम होता था. ब्राह्मण सुपीरियर थे, कश्तरी जो थे वो जंग लड़ते थे, जो वेश थे वो तिजारत और वगैरह करते होते थे, जो शूद्र थे वो मुलाजिम होते थे, और जो दलित से जो सबसे लोअर कास्ट है वो ये सफाई करना, बाथरूम वगैरह साफ़ करना, ये इस तरह के जो काम होते हैं वो ये करते होते थे. सो society was basically at that time divided based on religion, and there was class based भी थी. अमीर लोग भी थे, गरीब लोग भी थे. तो जो अमीर होते थे वो पावरफुल होते थे, उनके पास ज़मीनें होती थी, उनके पास ताकत होता था, वो एम्पायर कोर्ट तक उनकी रसाई होती थी. जबकि जो गरीब लोग थे उनका दे हैड नो एक्सेस टू एनी रिसोर्सेज एंड दे हैड नो एक्सेस टू एनीथिंग. सो सोसाइटी वाज बेसिकली divided. And then in the map you can see India in 600 BC. You can see the map of that, how India was there, and the different cities such as Anga, Magadha, Kashi, Virji, Malla, Kosala, Panchala, Kuru, Vasta, Avanti. So all these cities you can see in the map, that how the in ancient India the state and existed, how the state was there, and how society existed. So this was basically an overview of the ancient India that we call the Qadim Hindustan, how India before Muslims, और मुसलमानों के आने से पहले हिंदुस्तान किस तरह का था, यहाँ पर किस तरह के लोग रहते थे. So this was basically an overview. So in the next lecture then we will be talking about the medieval India. And medieval India में ये है कि जब मुसलमान आते हैं, what kind of India was there, मुसलमान फिर आते हैं, वो किस तरह की अपनी हुकूमत बनाते हैं. So in the next lecture we will be talking about the medieval India. So in this lecture we talked about the ancient India. So meet you in the next lecture. Thank you and Allah Hafiz.